نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کے نام سے اس سورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا۔ ان کا مبارک تذکرہ آگے اس سورت کے اندر آنے والا ہے۔ سورہ ہود میں قیامت کے دن کے متعلق بہت سے تذکرے کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور آپ کی داڑھی مبارک کے بال سفید ہو گئے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات غم کے اظہار کے طور پر کی تھی کہ آپ کے بالوں کی سفیدی ظاہر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی اس کے مضامین اس قدر اللہ کا خوف پیدا کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے مجھے بڑھاپا ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ بعض روایات میں سورہ ہود کے ساتھ سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، سورۃ التکویر، ان کا بھی ذکر آیا۔ تو سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے متعلق اور آخرت کے متعلق بہت گہری گفتگو فرمائی ہے، جس کی تفصیل آنے والے اسباق میں وقتاً فوقتاً انشاءاللہ العزیز آتی رہے گی۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جن کا معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ کوئی راز ہے۔ کتاب، یہ کتاب ہے، احکمت، احکمت کا معنی ہے کہ مضبوط کر دی گئی ہے۔ آیاتہ، اس کی آیتیں، یعنی ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو مضبوط کر دیا دلائل کے ذریعے سے۔ ثم پھر فصلت، تفصیل بیان کی گئی، من لدن حکیم خبیر، من لدن، من کا معنی سے، لدن کا معنی طرف، حکیم کا معنی حکمت والا، خبیر کا معنی خبر رکھنے والا۔ یہ دونوں حکیم اور خبیر یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ثم فصلت، پھر تفصیل بیان کی گئی اس کتاب مبین کے اندر، من لدن حکیم خبیر، حکمت والے خبر رکھنے والے ذات کی طرف سے۔ اب وہ اللہ کی ذات جو کہ حکیم بھی ہے، جو خبیر بھی ہے، وہ ذات حکم دے رہی ہے توحید کا،
अल्ला ताबुदू इल्लल्लाह, कि तुम इबादत न मत करो इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो। इबादत का हक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास है। अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना ये शिरक है। तो अल्लाह ताला ने पहले अपनी तौहीद का ऐलान फरमाया और उसके बाद अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ऐलान फरमाया। इन्ननी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान अक़दस से उम्मत को बता रहे हैं कि इन्ननी, बेशक मुझे, लकुम, तुम्हारे पास, मिन्हु, उसी रब की तरफ से बनाकर भेजा गया, नज़ीर भी और बशीर भी। इन्ननी, बेशक मुझे, लकुम, तुम्हारे पास, मिन्हु, उसी रब की तरफ से, नज़ीर और बशीर बनाकर भेजा गया। नज़ीर का लफ्ज़ी माना है डराने वाला, बशीर का लफ्ज़ी माना है खुशखबरी सुनाने वाला। अब दुनिया में जब हम कहते हैं डराने वाला, तो डराने वाले से मुराद दुनिया के अंदर उर्फ़ आम में वो बंदा समझा जाता है जो किसी को खौफज़दा कर रहा हो, परेशान कर रहा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो सिफत है नज़ीर, डराने वाला, ये खौफज़दा करने के लिए नहीं, परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि खौफ से निकाल कर खौफ ख़त्म करने के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ीर हैं, किस लिहाज से? परेशानियां ख़त्म करके उसको खुशियों में बदलने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ीर हैं, कि लोगों को ये बताने के लिए कि देखो जहाँ तुम खड़े हो इस वक्त वहाँ पे ख़तरा है, ये रास्ता छोड़ दोगे तो तुम ख़तरे से बच जाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताने वाले कि जिस रास्ते पर चल रहे हो ये ख़तरनाक रास्ता जहन्नम की तरफ जा रहा है, इस रास्ते को छोड़कर इस रास्ते पे आ जाओगे, सीधा जन्नत में चले जाओगे। ये है नज़ीर, डराने वाला। बशीर, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानता जाए उसको खुशखबरी सुना दो। ये जन्नत के रास्ते पे चल पड़ा, जन्नत की खुशखबरी सुना दो। ये होरो गिलमान के रास्ते पे चल पड़ा, इसको होरो गिलमान की खुशखबरी सुना दो। ये कब्र की अच्छाई की तरफ चल पड़ा, इसको कब्र के जन्नत के बाग बन जाने की खुशखबरी सुना दो। और इसके बाद अल्लाह ताला ने पहले तौहीद का मसला बयान फरमाया। इस सबसे पहले कुरान पाक की अल्लाह पाक ने इज़्ज़त, अज़मत और सदाकत का इजहार फरमाया। उसके बाद तौहीद का ऐलान फरमाया। उसके बाद अल्लाह ताला ने रिसालत का ऐलान फरमाया। अब इंसान को अल्लाह ताला डायरेक्ट एक खिताब दे रहे हैं, चूँकि कुरान मजीद इंसानी हदायत और रहनुमाई की किताब है। इंसान के लिए दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के उसूल की किताब कुरान मजीद है। दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए कानून की किताब कुरान मजीद है। दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए रहनुमा उसूल, बेहतरीन रहबरी, हदायत और रहनुमाई की किताब कुरान मजीद है। अब कुरान मजीद दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या बता रहा है? अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? व अनिस्तगफिरू रब्बकुम, व अनिस्तगफिरू रब्बकुम, और ये कि तुम इस्तिगफार करो रब्बकुम, अपने रब से। इस्तिगफार, ये लफ्ज़ जो है इस्तिगफार का, ये बख्शिश मांगना इसका मतलब होता है। इस्तिगफार का माना है बख्शिश मांगना, मग़फ़रत तलब करना, तौबा करना, ये सारे के सारे इसके मानी बन जाते। इस्तिगफार का एक तो मतलब ये है कि अस्तगफिरुल्लाह, सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह। सब बाज़ लोग कहते हैं जी हम इस्तिगफार करते हैं। क्या इस्तिगफार? इस्तिगफार, 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 इस्तिगफार। ये क्या इस्तिगफार? जो मुख्तसर इस्तिगफार है वो है अस्तगफिरुल्लाह, 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 जिसका मतलब है कि ए अल्लाह मैं आपसे बख्शिश तलब करता हूँ। अब ये तो मुख्तसर है, और एक अगर पूरा मुकम्मल का पढ़ना है तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये पूरा है। तो पूरा पढ़ लें तब भी ठीक है, और अगर मुख्तसर पढ़ लें तब भी ठीक है। इस्तिगफार करना ज़रूरी है। हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि इस कायनात के दूल्हा हैं, जो कि मासूमीन के इमाम हैं, पैगम्बर सारे मासूम होते हैं,
ख़ताओं से, गलतियों से दरगुजर, सब कुछ उनके करीब भी नहीं जाता। गुनाह नबियों के करीब नहीं जाता। नबी मासूम होते हैं, ख़ताओं से मासूम होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के इमाम हैं, तमाम मासूमीन के इमाम हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। सवाल हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों इस्तिग़फ़ार करते, तो जवाब यही था कि चूँकि उम्मत को बतलाया गया है कि जनाब आपके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करेंगे उम्मत वही करेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को तालीम देने के लिए करते थे, ताकि उम्मत को पता चल जाए कि भाई हमने इस्तिग़फ़ार करना और इस्तिग़फ़ार के फ़वाइद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके दिखाते थे। और हर नमाज के बाद 3 दफ़ा सलाम फेरने के बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। अब सवाल पैदा हुआ कि देखो भाई नमाज पढ़ी है, नेकी का काम किया है, इस्तिग़फ़ार तो किया जाता है गुनाह के ऊपर, यहाँ इस्तिग़फ़ार क्यों किया जा रहा है? जवाब ये है कि नमाज पढ़ने का जैसे हक़ था उसके पूरे हुकूक हम अदा नहीं कर सके। जो अल्लाह ताला की शान शान नमाज बनती थी, हम उस मायार तक नहीं पहुंच सके, उस मायार तक नमाज को अदा नहीं कर सके, हमसे कुताही हुई। इस कुताही पर हम इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये इस्तिग़फ़ार करने की बरकत से अल्लाह जो कुताही है उसको माफ़ फरमा देंगे और नमाज को असल मायार और मर्तबे तक उसको कबूल फरमा लें। और इस्तिग़फ़ार करने के बहुत से फ़वाइद हैं। आज दुनिया में जितनी भी परेशानियां हैं, तमाम परेशानियों का हल इस्तिग़फ़ार के अंदर अल्लाह ताला ने रखा है। इस्तिग़फ़ार वो चीज़ है कि जिससे हर चीज़ का हल निकल आता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस्तिग़फ़ार की तरफ कसरत के साथ रुजू करें। और इसमें कोई मसला नहीं, रोज़ाना की एक तस्बीह सुबह को इस्तिग़फ़ार की कर ली जाए और एक तस्बीह शाम को इस्तिग़फ़ार की कर ली जाए, तो उससे हमारे तमाम के तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। जब इस्तिग़फ़ार की कसरत करेंगे तो हमारे तमाम मसाइल का हल उसमें निकल आएगा। हज़रत हसन बसरी रहिमहुल्लाह ताला के पास एक आदमी आता है। अर्ज़ किया, हज़रत बारिश नहीं हो रही। फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। एक और आदमी आ गया, हज़रत घर में तंगदस्ती बहुत है, गुर्बत बहुत है, मालो दौलत की बहुत कमी है। फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। एक तीसरा आदमी आ गया, हज़रत औलाद नहीं है, दुआ फरमा दें। फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। एक चौथा आदमी आ गया, हज़रत कहत साली पैदा हो गई, ज़मीनों ने पैदावार कम कर दी, बागात में पैदावार नहीं। फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। तो हर मसले का हल अल्लाह वाले क्या बता रहे हैं? इस्तिग़फ़ार करो, इस्तिग़फ़ार करो, इस्तिग़फ़ार करो। बाद में मुरीदीन ने पूछा कि हज़रत ये क्या मामला है कि आपने हर मसले का हल इस्तिग़फ़ार ही बताया? तो आपने कुरान पाक की आयत मुबारका पढ़ी, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला शुरू में वस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, तुम अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, वो रब गफ़्फ़ार है, बख्शने वाला है। फ़ायदा क्या होगा? पहला फ़ायदा ये होगा, अल्लाह तुम्हारे ऊपर बारिश बरसाएगा। दूसरा फ़ायदा क्या होगा? अल्लाह माल के ज़रिए तुम्हारी मदद फरमाएगा। तीसरा फ़ायदा ये होगा, अल्लाह औलाद के ज़रिए, बेटों के ज़रिए तुम्हारी मदद फरमाएगा। चौथा फ़ायदा क्या होगा? अल्लाह ताला तुम्हें बागात और नहरें अता फरमाए। ये सारी चीज़ें अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर बयान फरमाई। तो इस्तिग़फ़ार कसरत के साथ करने से हमारे तमाम मसाइल का हल अल्लाह ताला ने इस्तिग़फ़ार के अंदर रखा। इस्तिग़फ़ार का मतलब है अल्लाह की ज़ात की तरफ रुजू करना। तो जब इंसान अल्लाह की ज़ात की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह ताला हर मसले का हल तो अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसके तमाम मसाइल का हल फरमा देते हैं।
हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहिमहुमुल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक नौजवान था, बहुत कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार किया करता था, हर बात पे अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह, रोता बहुत था। उसने जवानी के अंदर ही मुजाहिदात कर कर के रो रो के अपने आप को खपा दिया था और गुल गया था बिल्कुल। नौजवान का आखिरी वक्त आ गया, अम्मी जान को बुलाया, अम्मी जान मेरी 3 वसीयतें हैं, मैं जा रहा हूं दुनिया से, 3 वसीयतें हैं, माँ होने के नाते पूरी कर देना। बेटा बताइए कौन कौन सी? अम्मी जान एक वसीयत तो ये है, मैं बहुत गुनाहगार हूं। यहां ये बात याद रखें कि जो बंदा अल्लाह के जितना करीब होता जा रहा होता है, उसको अपने गुनाह और शर्मिंदगियां उसको सामने नजर आना शुरू होती हैं, और जितना अल्लाह की ज़ात से दूर होता है वो उसके गुनाहों पे पर्दे होते हैं, उसको कोई पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूं। तो अल्लाह के करीब होना इंसान को अपना आप जाहिर होना शुरू हो जाता है कि मैं कितना गंदा इंसान हूं। तो नौजवान क्या कहने लगा, अम्मी जान मैं बहुत गुनाहगार इंसान हूं। अम्मी जान पहली मेरी वसीयत यह है कि जब मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरे गले में रस्सी डालकर इस सेहन के अंदर घुमा देना और ये ऐलान कर देना जो गुनाहगार होगा, जो अल्लाह का नाफरमान होगा, उसकी यही सज़ा होगी। अम्मी जान तुझे तेरी ममता का वास्ता, अम्मी जान तुझे तेरे बेटे का वास्ता, माँ की मोहब्बत का वास्ता, मेरी इस आरजू को पूरा कर लेना। अम्मी जान मेरी दूसरी दरख्वास्त यह है कि मेरा जनाजा रात के वक़्त उठाना, ताकि लोग देख कर मेरे जनाजे को परेशान ना हो जाएं, क्योंकि मैं एक गुनाहगार इंसान हूं। लोग ये ना कहें कि देखो एक गुनाहगार का जनाजा जा रहा है। अम्मी जान तीसरी दरख्वास्त ये है कि जब लोग मेरा जनाजा पढ़ के मुझे मैयत को उठाकर कब्रिस्तान लेकर चले जाएं, अम्मी जान आप भी वहां कब्रिस्तान आ जाना। जब लोग मुझे दफन करके वापस चलने लगे, अम्मी जान मेरी कब्र पर खड़े हो जाना। उस वक़्त फरिश्ते आएंगे और मुझसे सवाल जवाब करेंगे। लोग तो सारे वापस चले जाएंगे, लेकिन मैं गुनाहगार इंसान हूं। आप माँ वहां खड़ी होंगी, अल्लाह माँ के कदमों की बरकत से मेरे उस सवाल जवाब को आसान फरमा देंगे। ये इतनी बात की और उस नौजवान की रूह परवाज कर गई। वालिदा मोहतरमा ने सबसे पहली वसीयत पर अमल करने के लिए बेटे के गले के अंदर रस्सी डाल दी और अभी पकड़कर उसको चलाने लगी। गैब से आवाज आती है, ऐ बीबी छोड़ दे, तुझे क्या पता इसको अल्लाह ने कितना बड़ा मर्तबा अता फरमा दिया, और ये तो हमारा नेक बंदा है, हमारा दोस्त है। दोस्तों को जलील नहीं किया करते, रस्सी डालकर घसीटा नहीं करते, उनकी तो इज्जत किया करते हैं। सुभान अल्लाह। ये मकाम कब मिलता है इंसान को? जब इंसान अपने आप को गुनाहगार समझना शुरू कर दे, जब इंसान अपने आप को आजिज़ और तवाज़ो करना शुरू कर दे, अपने आप को जलील और हकीर समझना शुरू कर दे, जब वो अल्लाह को ये दिखाएगा, या अल्लाह मैं एक गुनाहगार बंदा हूँ, फ़कीर बंदा हूँ, जलील बंदा हूँ, अल्लाह अपनी रहमत की चादर डालकर उसको ऊंचा करके जन्नतुल फिरदौस में आला मर्तबा अता फरमा देगा। ये कहाँ से मिलेंगी चीज़ें? इस्तिग़फ़ार की बरकत से। वअन इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, इस्तिग़फ़ार करो अपने रब से, सुम्मा तूबू इलैहि, फिर रजू करो उसी की तरफ। तूबू का लफ्ज़ी माना है तौबा करना। यहाँ पर रजू से मुराद ये है कि जो तौबा की शराइत हैं, क्योंकि इस्तिग़फ़ार का माना भी तौबा है, तौबा की शराइत में से आखिरी शर्त यह होती है कि अल्लाह ताला से पक्का वादा कर लो कि या अल्लाह आइंदा मैं गुनाह नहीं करूँ। ये है सुम्मा तूबू इलैहि मरजिउ, सुम्मा तूबू इलैहि, फिर रजू करो उसी की तरफ, अल्लाह की ज़ात की तरफ रजू कर लो, या अल्लाह आइंदा मैं गलती नहीं करूँगा, पिछली तू माफ़ कर दे और आइंदा मैं गलती नहीं करूँगा। और फिर अगर गलती हो जाती फिर तौबा कर लो। एक है गुनाह का हो जाना,
और एक है गुनाह का करना। दोनों के अंदर फर्क रखिए। हम लोग क्या करते हैं, हम समझते हैं गुनाह कर लेना, गुनाह हो जाना दोनों एक जैसे। नहीं नहीं, ऐसा मसला नहीं। गुनाह का हो जाना और चीज है, गुनाह कर लेना ये और चीज है। दोनों के अंदर फर्क रखिए। फरमाया इस्तिगफार कर लो, फिर अगर गुनाह हो जाता है फिर इस्तिगफार कर लो, फिर गुनाह हो जाता है फिर तौबा कर लो, फिर गुनाह हो जाता है फिर तौबा कर लो। एक दिन के अंदर 100 मरतबा भी तौबा टूट गई, फिर तौबा कर लेना तुम्हारा काम है। और तुम्हारी तौबा को कबूल करके रहमत वाली चादर डाल देना रब्बे जुल जलाल का काम है। सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिउकुम मतान हसना। इस्तिगफार की बरकत से, तौबा की बरकत से, युमत्तिउकुम फायदा पहुंचाएगा तुम्हें, मतान हसना, मताए हसना अच्छा फायदा देगा अल्लाह। सवाल ये पैदा होता है, दुनिया के अंदर वो लोग जो अल्लाह को नाराज करके फिर रहे हैं, कभी इस्तिगफार नहीं करते, कभी अल्लाह का नाम जुबान पर नहीं लाते, वो भी तो दुनिया के अंदर फायदे उठा रहे हैं। लेकिन वो युमत्तिउकुम है, फायदे तो उठा रहे हैं, लेकिन मताए हसन नहीं है, अच्छा फायदा नहीं है। वो जितना फायदा उठा रहे हैं उतना ही वो जंजीरों के अंदर अपने आप को जकड़े जा रहे हैं, वो उतना ही अपने आप को अजाब के करीब लेकर जा रहे हैं, वो उतना ही अपने आप को जहन्नम के करीब लेकर जा रहे हैं। वो मताए हसन नहीं है। मताए हसन से मुराद ये है कि इंसान की तवज्जो मखलूक से हटकर खालिक पर जम जाए। अल्लाह तौबा की बरकत से मखलूक से नजरें हटाकर खालिक के ऊपर नजरें जमाने वाला बना देता है। इसको कहते हैं मताए हसन। बाज़ बुजुर्ग फरमाते हैं कि इंसान जो कुछ अल्लाह ताला ने उसको दिया है उस पर कनाअत कर ले, और किसी चीज के गुम हो जाने पर, ना होने पर गम ना करे। यह भी मताए हसन है। जितना दिया या अल्लाह तेरा शुक्र है, किराए का मकान है या अल्लाह तेरा शुक्र है, इतना तो दिया कि किराया अदा करके रह तो रहा हूं। उन लोगों भी तो को भी देखो जो बेचारे किराए का मकान लेने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं। दुनिया में जितना कुछ भी अल्लाह ताला दे दे उसके ऊपर इंसान मुतमईन हो जाए, गम में ना पड़े, यह है मताए हसन। और जिस बंदे की नेकियां उसकी बुराइयों पर गालिब आ जाएं, शाम को बैठकर रात को सोते वक्त अपने बिस्तर पे आंखें बंद करके सारे दिन का मुआयना कर ले, हिसाब किताब कर ले, चेक कर ले आज नेकियां कितनी की हैं, गुनाह कितने किए हैं। अगर तो नेकियां ज्यादा आ गई तो खुशखबरी है, मुबारक है, तुझे अल्लाह ने मताए हसन अता कर दिया है। यह है मताए हसना। युमत्तिउकुम फायदा पहुंचाएगा तुम्हें, मताए हसना का अच्छा फायदा। इला अजलिम मुसम्मा, एक मुकर्ररा मुद्दत तक, जब तक तेरी जिंदगी है उस वक्त तक फायदा मिलेगा, रूहानी सुकून मुयस्सर होगा, अल्लाह की रहमत मिलेगी। लेकिन जब तक जिंदगी है उस वक्त तक मिलेगी, मौत आएगी तो सब कट जाएगा। लेकिन आगे क्या होगा, कब्र के अंदर जाएगा अल्लाह, वहां रहमत भेजना शुरू कर देंगे। वयुति कुल्ली ज़ी फज़लिन फज़ला, और देगा अल्लाह हर फजल वाले को अपना फजल। यहाँ जी फजलिन से मुराद, पहला जो फजल है ना जी फजलिन, इससे मुराद है आमाल सालिहा। वयुति, और देगा अल्लाह कुल्ली ज़ी फजलिन, हर अच्छे आमाल वाले को, फजला हो अपना फजल। जिसने तौबा के बाद अच्छे अमाल शुरू किए उसको अल्लाह ताला दुनिया में अपना फजल अता फरमाते। व इन तवल्लो, अगर तुम फिर जाओगे, फ़इन्नी अखाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर, बस बेशक मैं डरता हूँ तुम्हारे बारे में अज़ाब यौमिन कबीर, बड़े दिन के अजाब से। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को ये बात समझा रहे हैं कि देखो मैंने तो नसीहत कर दी, अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, अगर तुम इस पैगाम से रूगर्दानी करोगे, इस पैगाम को सीने के साथ नहीं लगाओगे,
इस पैगाम के ऊपर अमल नहीं करोगे, व इन तवल्लौ, अगर तुम फिर जाओगे, फ़इन्नी अखाफ़ु अलैकुम, मुझे डर है तुम्हारे बारे में, अज़ाब यौमिन कबीर, बड़े दिन के अजाब से। इलल्लाहि मर्जिउकुम, अल्लाह की तरफ तुम्हारा लौटना है, तुमने अल्लाह के पास लौट कर जाना है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, वो अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इसलिए जब इंसान ये जहन बना ले कि मैंने अल्लाह के पास ज़रूर जाना है और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, भाग मैं नहीं सकता, छूट मैं नहीं सकता, अजाब देना चाहे अजाब से मैं नहीं बच सकता, अल्लाह तो कादिर है, तो फिर इंसान गुनाहों से बाज आ जाएगा, गुनाहों से भागेगा, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करेगा। आखिरी आयत का शान नज़ूल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी था और वो सहाबा इकराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुप छुपा कर बातें किया करता था, दुश्मनी, बुग़्ज़, अदावत। दूसरा कौल ये है कि मुनाफिकीन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठते तो अपने आप को छुपा लेते थे, ऊपर कंबल ओढ़ लेते, चादर ओढ़ लेते। हम अपने दिल को छुपा रहे हैं ताकि हमारे दिल तक कोई बात ना पहुंच सके। तीसरा कौल यह है कि मुनाफिकीन जब घरों के अंदर आते तो एक सूरत और हुलिया बनाते, सबसे पहले नंबर पे कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, अपने ऊपर चादर ओढ़ ली, फिर अपने आप को बिल्कुल इकट्ठा करके, नीचे सर करके इकट्ठा करके बैठ गया कि मैंने दिल को छुपा लिया है। पहले अपने जिस्म के अंदर छुपाया, ऊपर कमीज के अंदर छुपाया, फिर ऊपर चादर के अंदर छुपाया, फिर कमरे के अंदर छुपाया, दरवाज़ा भी बंद कर दिया। अब कहते अल्लाह ताला अभी भी हमारे दिल की बातें सुन लेगा, अभी भी अल्लाह को पता चल जाएगा हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह ने इस चीज़ का जवाब दिया, अला सुनो, इन्नहुम यसनून सुदूरहुम, बेशक वो दोहरे करते हैं अपने सीने, लियस्तख्फू, ताकि वो छुपाएं, मिनहु, उस जात से। सीने किस लिए दोहरे करते हैं? ताकि वो अपने आप को छुपा लें, अपने आमाल को अल्लाह की जात से छुपा लें। अला सुन लो, हीन यस्तगशून सियाबहुम, जिस वक़्त तुम ओढ़ते हो, जिस वक़्त वो ओढ़ते हैं, सियाबहुम, अपने कपड़े, यालमु, जानता है वो अल्लाह, मा युसिर्रून, जो वो छुपाते हैं, व मा युलिनून, जो वो जाहिर करते हैं। ये जितना भी अपने आप को छुपा लें, अल्लाह सब कुछ जानते हैं, जाहिरी बातों को भी जानते हैं, छुपी हुई बातों को भी जानते हैं। और आखिर में अल्लाह ने फैसला कर दिया, इन्नहु अलीमुम बिदातिस सुदूर। ये तो उन अमाल की बात कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं। अल्लाह की ज़ात तो वो है, इन्नहु, बेशक अल्लाह की ज़ात वो है, अलीमुन, जो जानने वाला है, बिदातिस सुदूर, सीनों के बातों को भी। अभी इंसान के दिल के अंदर एक ख्याल आया, वो ख्याल दिमाग तक नहीं पहुंचा, जुबान तक नहीं आया, अल्लाह उन दिलों के ख्यालों से भी वाकिफ हैं। और तुम अपनी बातों को अपने सीनों के अंदर से बाहर निकाल कर कपड़े में लपेट कर तुम कहते हो ये कैसे जान लेगा? अल्लाह को सब मालूम है। अल्लाह ने ये बात तो मुनाफिकीन की नकल करके हमें बताई, लेकिन मुझे और आपको भी समझा दिया, देखो तुम जिस बंद कमरे के अंदर भी बैठ के कोई गुनाह करोगे, अल्लाह की ज़ात वाकिफ है। हमेशा ये ख्याल रखना कि अल्लाह के पास तुमने जाना है, अल्लाह पूछेंगे ये क्या करके आए थे। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।